Before we proceed with our today's video, let's have a quick review about what we have learned in our previous video. In our previous video, we have learned about importance of government. Why the government is important? The government is important to ensure that the law is same for everyone. That means the government tries to make sure that everyone gets the justice and there is same law which is followed by everyone, which is made for everyone. Next, we have learned about the different levels of the government. As we know that India is a vast country, to administer such a vast country is not easy. That's why we have divided the administration into three parts. First is local level, state level and national level. Local level deals the problems with villages and cities. State level will deals the matters related to the entire state, and the national level will deals with the problems related to the entire nation or entire country. I hope you have understood the previous video very well. Now let's move to the today's topics. So let's proceed to our topic government and laws. These both are inseparable, okay? Law and government work together. So we know that government is the one who frames the laws and these laws must be obeyed by all the citizens. सारे citizens को ये laws follow करने हैं और government ही है जो ये laws बनाती है. For the proper functioning of the country, for the proper functioning of the organizations, it is very important to frame laws. लॉज बनाना बहुत ज़रूरी है कि कंट्री अच्छे से काम करे, फंक्शन करे, डेवलप करे और हाँ और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से काम करे उसमें लॉज होते ही है. एंड गवर्नमेंट इज द वन हु फ्रेम्स द लॉज बट ऑल्सो इम्प्लीमेंट्स इट. मतलब गवर्नमेंट लॉ बनाती तो है बट उसको इम्प्लीमेंट भी करवाती है. फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर ट्रेवलिंग बाय ट्रेन और अगर आप ट्रेन से ट्रेवल कर रहे हो और आपके पास टिकट नहीं है, यू डोंट हैव टिकट, so what will happen? You have to pay penalty. Either you have to pay penalty or you have to go to jail. Means there is a law. Without ticket you can't travel in train or in any transport. Okay, so that is why law is very important. But there is also another side. For example, if the citizens are thinking that some laws are not being properly executed, are not proper, then they can raise their voice in the court and they can say that we are not happy with these laws. Then what will happen next? The court will give the notice to the government. The court will give the time to the government to think again. They will say that these laws are not very much liked by the people, so you have to change it either or think once again. So this is the way that government and laws are. So our next topic is organs of the government. So we realize that government is a very important organ, is a very important organization who is responsible for the proper functioning of the country. सारे country की functioning proper हो वो पूरा depend करता है हमारे government में, क्योंकि government ही है which frames the laws, interprets it and उसको justice देना, follow करवाना, implement करवाना, ये सब पूरा हाथ government के हाथ में सब कुछ. Okay, so इससे हमें यही पता चलता है that government is very important organ, government is very important and उसकी जो functioning है वो भी बहुत ही important है, वो बहुत important काम करती है country के लिए. But कैसे काम करती है? How it works? So mainly government के organs होते हैं. Mainly there are three organs of the government. The one is first is legislate, इसको हम legislature भी कहते हैं. सेकंड इज to execute, मतलब गवर्नमेंट का पहला काम है to legislate. लेजिस्लेचर में क्या होता है? The government, the part of the government, the organ of the government, मतलब वो डिपार्टमेंट गवर्नमेंट का जहाँ लॉज फ्रेम होते हैं, जहाँ लॉज बनते हैं, उसको लेजिस्लेचर कहा जाता है. सेकंड पार्ट टू एग्जीक्यूट. एग्जीक्यूट मतलब कि गवर्नमेंट को सेकंड डिपार्टमेंट जो गवर्नमेंट का है वो होगा लॉज को इम्प्लीमेंट करवाना, फॉलो करवाना, इसको एग्जीक्यूटिव भी कहा जाता है. एंड द लास्ट वन इज टू इम्पार्ट जस्टिस. तीसरा जो काम होगा गवर्नमेंट का, तीसरा जो डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का, दैट इज टू इम्पार्ट जस्टिस. इसको जुडिशियरी भी कहते हैं. सो
एग्जाम्पल, फर्स्ट ऑफ ऑल गवर्नमेंट विल फ्रेम लॉज, देखिए कि गवर्नमेंट का ये डिपार्टमेंट पूरा डिफरेंट रहेगा जो लॉज बनाएगा सिर्फ, और देखिएगा कि लॉज अच्छे से बने और लोगों के वेलफेयर के लिए बने। नेक्स्ट वन इज एग्जीक्यूटिव, दैट मीन्स दिस डिपार्टमेंट विल सी that the laws which are framed by the legislature are being executed, being implemented, being imparted properly or not. Okay, and the last one to impart justice, तीसरा काम होगा, तीसरा डिपार्टमेंट होगा गवर्नमेंट का कि wherever these laws are not properly executed, they have to take some action, they have to take some action on offenders, जो लोग नहीं मानते लॉज को, जो लोग जहाँ जिस एरिया में अच्छे से नहीं काम हो रहा है वहां पे या लॉज फॉलो नहीं किए जा रहे हैं वहां पे उनके खिलाफ एक्शन लेना। तो ये तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं गवर्नमेंट के, और इसी के बेस पे पूरी गवर्नमेंट हमारी काम करती है। So now let's move to next topic. India is such a vast country, and to administer such a large country, such a big country is not very easy. So that is why we here in India are having federal type of government. We can say that India is a federal state. Federal state का मतलब क्या कि इंडिया का जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है वो डिवाइड हो गया है टू पार्ट्स में, दैट इज सेंट्रल एंड स्टेट। सेंट्रल मींस वो एडमिनिस्ट्रेशन, वो गवर्नमेंट जो पूरे कंट्री वाइज रूल्स बनाती है। ओके, सो पूरे कंट्री के लिए जो रूल्स बनाएगा उसका आप नेशनल लेवल बोल दो, सेंट्रल, यूनियन गवर्नमेंट, व्हाटएवर यू कॉल, दैट मींस वो सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगी रिलेटेड टू द होल कंट्री, एंड वो जो भी रूल्स बनाएंगे दैट हैज टू बी फॉलोड बाय होल कंट्री, नॉट इवन फॉर एग्जांपल सिंगल स्टेट, नहीं, पूरा कंट्री हर एक को फॉलो करना पड़ेगा। एंड व्हाट अबाउट स्टेट गवर्नमेंट? स्टेट गवर्नमेंट मींस द रूल्स विच आर मेड फॉर द स्टेट ओनली। तो स्टेट गवर्नमेंट देखेगी कि वो रूल्स बनाएगी वो अपने स्टेट के लिए, इनका डिफरेंट कैटेगरी होगी, काम करेगा पूरा अलग होगा, और सेंट्रल गवर्नमेंट का पूरा अलग होगा। एंड इसको फिर भी इनको एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए एक स्ट्रक्चर होता है जो हमें देखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल स्टेट का हम बात करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं, क्विक रिव्यू करते हैं ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट सेंट्रल लेवल पे कैसे है, मतलब कि गवर्नमेंट के ऑर्गन्स जो पूरे कंट्री के लिए काम करते हैं वो कौन से हैं। ठीक है, वी ऑल नो दैट देयर आर थ्री ऑर्गन्स, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। लेजिस्लेटिव मींस जो रूल्स बनाएगा वो पार्ट है, वो डिपार्टमेंट गवर्नमेंट का जो which frames the laws, okay, and executive means the part which executes, implements laws को मनवाने का काम करेगा लोगों से, and last is judiciary, that in that justice मिलेगा लोगों को, कोर्ट्स वगैरह का पूरा कैटेगरी जो होगा। तो सेंट्रल लेवल पे कौन सी लेवल पे, पहले हम यहाँ देख रहे हैं सेंट्रल लेवल पे जो होंगे जो काम करते हैं ऑर्गन्स वो है पार्लियामेंट। सो लेजिस्लेचर में पहले आता है पार्लियामेंट विच वाज एट द यूनियन लेवल, नेशनल लेवल, सेंट्रल लेवल। तो पूरा जो लॉज बनते हैं पूरे कंट्री के लिए वो पार्लियामेंट में बनेंगे। पार्लियामेंट इज आल्सो डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, राज्यसभा एंड लोकसभा। फॉर दिस डिटेल वी विल अंडरस्टैंड इन द नेक्स्ट चैप्टर। नाउ द नेक्स्ट इज एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव में आता है हमारे जो लोग जो एग्जीक्यूट करवाएंगे, जो इम्प्लीमेंट करवाएंगे लॉज बना के, बाद में लोगों को कहेंगे, लोगों को अवेयर करेंगे कि ये लॉ है आप उसको फॉलो करो, ये यहाँ आपके लिए फैसिलिटी की है उसको यूज करो। तो ये कौन लोग होते हैं? प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विच वर्क अंडर द प्राइम मिनिस्टर, सारे जो मिनिस्टर्स मिलकर काम करते हैं, और सिविल सर्वेंट्स। इनका काम यही होगा कि जो लॉज यहाँ पे बन के आ रहे हैं वो अपनी एरियाज में इनको इम्प्लीमेंट करवाने हैं थ्रू आउट द कंट्री, थ्रू होल कंट्री। नेक्स्ट इज जुडिशरी। जुडिशरी यहाँ पे वो चीज है जो लॉज बनवा के, जो का काम करके, जो पनिशमेंट दी जाती है, जो ना माने वो ये काम करता है। अंडरस्टूड? जुडिशरी मींस जस्टिस देना, जो लोग सही फॉलो नहीं कर रहे हैं उनको कुछ ना कुछ एक्शन उनके खिलाफ लेने का काम यही करेंगे। इसमें आता है सुप्रीम कोर्ट, द फर्स्ट हेड कोर्ट, मतलब जो सबसे बड़ा कोर्ट कहलाता है वो सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट केसेस वो लेता है जो पूरे प्रॉब्लम्स हमारे कंट्री वाइड रिलेटेड है। नाउ आई होप यू अंडरस्टूड अबाउट द सेंट्रल लेवल, उनके ऑर्गन्स कैसे होते हैं, वो किस तरह से होते हैं। द डिटेल ऑफ दिस whole we will do it afterwards in
the next chapter. Now we will learn about state level कैसे काम करता है. Okay, so let's start. So let's now see what is about state government. State government के organs उसका structure कैसे है. Okay, first of all it comprises of governor. पहले जो होता है वो governor होता है. Then he is called the head of the state government. सब कुछ उसके हाथ में है. Governor is also called the constitutional head. ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी. That governor is known as constitutional head. Also, he is appointed by the president. He is the representative of the president. President ही उसको select करते हैं और state अपना दे देते हैं कि इसकी responsibility आपकी. Now, after governor comes के उनके अलग 3 parts आते हैं. Legislature, executive, judiciary. इन सबको handle करते हैं लोग. Now, legislature comprises of, constitutes of legislative council and legislative assembly. लेजिस्लेटिव जो पार्ट होता है मतलब जहाँ पे लॉज को फ्रेम किया जाता है, बनाया जाता है, एक्ट्स बनाए जाते हैं, यहाँ पे उसके 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे, 2 हाउसेस आएंगे. फर्स्ट इज लेजिस्लेटिव काउंसिल. लेजिस्लेटिव काउंसिल इज ऑल्सो कॉल्ड अपर हाउस. लेजिस्लेटिव असेंबली विच इज कॉल्ड लोअर हाउस. नाउ हियर इज वन थिंग, स्पेशल थिंग है यहाँ पे, दैट इज सम स्टेट्स आर ओनली हैविंग अपर हाउस. मतलब कि सिर्फ किसी में लेजिस्लेटिव काउंसिल ही बना हुआ है, लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है. कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जिसमें दोनों हैं? दोनों बहुत कम स्टेट्स में. दोनों किस में है? आंध्र प्रदेश इज हैविंग बोथ लेजिस्लेटिव काउंसिल भी, लेजिस्लेटिव असेंबली भी. बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, कुछ ये स्टेट्स हैं जिनमें दोनों हाउस है, जबकि किसी में सिर्फ एक ही है, लेजिस्लेटिव काउंसिल. लेजिस्लेटिव काउंसिल गुजरात में भी हमारे एक ही है. उससे ही हमारा गवर्नमेंट का पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क तो हो जाता है. मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज एग्जीक्यूटिव. यहाँ पे रूल्स जो लेजिस्लेचर ने बनाए, मींस द रूल्स व्हिच आर मेड हियर, दे आर बीइंग एग्जीक्यूटेड, दे आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड. ये इम्प्लीमेंट करवाने वाले, एग्जीक्यूट करवाने वाले लोग कौन है? फर्स्ट ऑफ ऑल चीफ मिनिस्टर्स है और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है. चीफ मिनिस्टर भी एक तरह के हेड ही कहलाते हैं. याद रखना, स्टेट में सबसे बड़ा जो मेन काम है चीफ मिनिस्टर करते हैं, बिकॉज दे हैव टू सी ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क. और उनके अंडर कुछ और मिनिस्टर्स है जिनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल टेक्सटाइल, रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट, डिफरेंट. ठीक है, ये बहुत पूरा एक स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसकी हम बाद में दूसरे चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यही याद रखना है कि एग्जीक्यूटिव में कौन आता है? चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. नेक्स्ट मूविंग टू द जुडिशरी. अब जैसे कि इन द सेंट्रल गवर्नमेंट जुडिशरी मतलब कि जस्टिस जो देता है वो था सुप्रीम कोर्ट. नाउ हियर इट इज हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट एंड तालुका कोर्ट. अब यहाँ पे स्टेट लेवल पे जो भी कोई प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना हो, कोई केस आ जाए जिसको हमें सॉल्व करना है, वो कहाँ जाएगा? पहले जाएगा डिस्ट्रिक्ट एंड तालुका कोर्ट में. दीज आर कॉल्ड लो लेवल कोर्ट. सबसे पहले जो भी कोई प्रॉब्लम्स होती है उनको यहाँ लेके जाया जाता है, सॉल्व करने की कोशिश की जाती है जितना हो सकता है. अगर वो सॉल्व नहीं होता है देन इट इज गॉन टू द हाई कोर्ट. फिर हाई कोर्ट में जाकर सॉल्व होता है. ये हर एक स्टेट पे इस तरह से पूरा जुडिशरी का लेवल रहता है. सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस स्ट्रक्चर very well. So now here is the end of the chapter. We have completed this chapter number 3, government. I hope you understood very well. Go through the videos once again and try to solve the worksheets which we will send on as a PDF file. Till then, stay safe, stay home. Have a nice day. Thank you.